So students, now we are going to discuss that how the price of related goods affect the demand for a commodity. In our last class, we discussed about the movement along a demand curve and shift in demand curve. In today's class, we will be discussing certain cases of shift in demand curve. We know that the shift in demand curve is because of change in factors other than the price. When the factors like price of related goods, income of the consumer, tastes and preferences of the consumer, expectations of the consumer, when such factors change, there is a shift in the demand curve, either a forward shift or a back, either a rightward shift or a leftward shift. So let us discuss these cases one by one. The first case is how the price of related good affect the demand for a commodity. We know that the related goods are of two types, substitute goods and complementary goods. So first let us start with substitute goods. Substitute goods are the goods that are consumed in place of one another. ये एक दूसरे की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं. The examples of these can be tea and coffee. These are the substitutes of one another. Coke and Pepsi are the substitutes of one another. Ball pen and ink pen are also the substitutes of one another. So, if the price of substitute goods increases, let us take the case of Coke and Pepsi. If the price of substitute goods increases, देखिए अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी. वी नो दिस इज अ वेरी सिंपल, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. इफ द प्राइस ऑफ कोक इंक्रीजेज, डिमांड फॉर कोक विल फॉल. एंड एज कोक एंड पेप्सी आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ वन अनदर, कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया, लोग अब कम कोक कंज्यूम करेंगे, लोग अब ज़्यादा पेप्सी कंज्यूम करेंगे. सो इन दिस केस द डिमांड फॉर पेप्सी विल इंक्रीज. बट वी नो दैट प्राइस ऑफ पेप्सी इज कॉन्स्टेंट. प्राइस पेप्सी के प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं आया, चेंज तो कोक के प्राइस में आया. कोक का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड लोगों ने कोक की कम कर दी, बट पेप्सी की डिमांड बढ़ा दी, जबकि पेप्सी का प्राइस तो सेम ही था. अगर अब हम पेप्सी को स्टडी करें, दिस हेयर वी हैव टेकन द प्राइस ऑफ पेप्सी, हेयर द क्वांटिटी ऑफ पेप्सी. सो व्हेन द प्राइस ऑफ पेप्सी वाज 2, 3 units were demanded. Now पेप्सी का प्राइस इज कॉन्स्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी. पेप्सी का प्राइस अब भी 2 है, बट अब 2 रुपीज़ पे 4 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं हम, डिमांड बढ़ गई. इफ वी प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, you can see that on the y-axis we have taken the price of Pepsi, on the x-axis we have taken the quantity of Pepsi. This D is the demand curve for Pepsi. You can see that when the price is rupees 2, 3 units are demanded. When the price is, now in the second case also the price is 2, but as the price of Coke has increased, तो लोगों ने कोक की डिमांड कम कर दी है और पेप्सी की डिमांड बढ़ा दी है. बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम D to D1. अब at rupees 2, 4 units are demanded. Earlier at rupees 2, 3 units were demanded. Now at rupees 2, 4 units are demanded because of rightward shift in the demand curve. So you can see that if the price of substitute goods increases, the demand for our good will increase. Now the second case, if the price of substitute good decreases, again taking the same example of Coke and Pepsi. अब जो substitute good है, हमारा जो good है पेप्सी, उसका substitute good कौन है? कोक. कोक का प्राइस कम हो गया, कोक का प्राइस कम होने पे कोक की डिमांड बढ़ जाएगी. अब कोक की डिमांड बढ़ जाएगी तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी. Although there is no change in the price of Pepsi is still constant here. बट क्योंकि जो पेप्सी है उसका सब्सटीट्यूट गुड कोक का प्राइस कम हो गया है तो लोगों ने कोक को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया. सो इफ़ द प्राइस ऑफ कोक विल डिक्रीज, देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक विल इंक्रीज. एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर पेप्सी डिक्रीजेज, इट्स प्राइस बीइंग कॉन्स्टेंट. दस दिस विल कॉज अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर पेप्सी. पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी कांस्टेंट प्राइस पे भी. व्हेन द प्राइस वाज 2, अर्लियर 4 यूनिट्स वर डिमांडेड, बट नाउ एज द प्राइस ऑफ कोक हैज़ डिक्रीज्ड, कोक की डिमांड बढ़ गई तो लोगों ने पेप्सी कम कंज्यूम करना शुरू कर दिया. नाउ एट rupees 2 ओनली 3 यूनिट्स आर डिमांडेड.
On the y-axis we have taken price and on the x-axis we have taken quantity. This was D was the demand curve, initial demand curve. At D, at rupees, on the demand curve D at rupees 2, 4 units were demanded. This is 4. 4 units were demanded. But now, because the price of कोक हैज़ डिक्रीज, लोगों ने कोक की डिमांड बढ़ा दी है, पेप्सी की डिमांड कम हो गई है, तो देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम D to D1 एंड नाउ एट ₹2 3 यूनिट्स ऑफ पेप्सी आर डिमांडेड. पेप्सी की डिमांड कम हो गई. नाउ दिस वॉज अबाउट द हाउ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अफेक्ट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी. नाउ कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हमने सब्सटीट्यूट गुड्स का केस किया. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? दीज आर द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर टू ऑब्टेन सेटिस्फेक्शन. इन्हें हम इकट्ठे कंज्यूम करते हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले. इनके एग्जाम्पल्स कैन बी ब्रेड, बटर. इट्स एग्जाम्पल कैन बी इंक, पेन एंड इंक. इट्स एग्जाम्पल कैन बी petrol car and petrol. So now let us study the two cases. First one is if there is increase in the price of complementary goods. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इंक पेन और इंक की. अगर इंक पेन का प्राइस बढ़ जाएगा तो इंक पेन की डिमांड तो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड कम कर देंगे लोग. बट अब साथ ही इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी. इंक पेन का प्राइस बढ़ा तो इंक पेन की डिमांड कम हो गई, तो लोग अब इंक की डिमांड भी कम कर देंगे. बिकॉज दीज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं. सो इफ़ द प्राइस ऑफ इंक पेन इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ इंक फॉल्स, ink pen fall. If the price of ink pen increases, demand of ink pen falls, and hence the demand for ink also falls, because these are complementary goods. Though the price of ink was constant, still इसकी demand कम हो गई क्योंकि ये complementary goods हैं. So here is an example, here is the diagram. On the x-axis we have taken the quantity of ink. On the y-axis we have taken the price of ink. So the price is OP1. At price OP1 on the initial demand curve, that is D, OQ quantity was demanded. OQ quantity was demanded. But when the price of ink pen increased, ink pen का price increase होने पे ink pen की demand कम हुई और ink की भी demand कम हो गई, जबकि ink का price कोई चेंज नहीं हुआ, इंक का प्राइस कांस्टेंट ही है. बट उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, जिस वजह से इंक की डिमांड भी कम हो गई. सो डिमांड कर्व शिफ्टेड लेफ्टवर्ड फ्रॉम D to D1 एंड नाउ एट प्राइस OP1 सेम प्राइस, कांस्टेंट प्राइस. अर्लियर OQ was demanded, now only OQ1 is demanded. So this is the case of decrease in demand. Now the other case is of decrease in the price of complementary goods. जब complementary goods का price कम होता है. Again we are taking the example of ink pen and ink. अब देखिए, अगर ink pen का price कम हो जाएगा तो लोग ink pen की तो डिमांड ज़्यादा करेंगे. किसी भी चीज़ का price कम होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा की जाएगी. बट एट द सेम टाइम इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी, जबकि इंक का जो प्राइस था वो तो कांस्टेंट ही रहा ना. इंक के प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं आया था. बट क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया तो इसका गुड, इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी. सो अगेन वी हैव टेकन प्राइस ऑफ इंक ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑफ इंक ऑन एक्स एक्सिस. D is the initial demand curve. At OP1, OQ2 quantity was demanded. Initially OQ2 quantity was demanded. Now as the price of ink pen has reduced, ink pen का प्राइस कम हो गया, जिससे कि ink pen की डिमांड तो बढ़ी, इंक की भी डिमांड बढ़ गई, जबकि इंक का प्राइस कांस्टेंट है. This is why the demand will shift to new demand curve. This demand curve will shift to new demand curve. New demand curve is D1. So earlier at price OP1,
with price OP1 we were here at point A and demanding OQ2 quantity. Now as the price of ink has reduced, the demand for ink, price of ink pen has reduced, demand for ink will increase and we will shift from D demand curve to D1 demand curve, and at price OP1 we will be now demanding OQ1 quantity. Our quantity demanded will increase from OQ2 to OQ1. This is the increase in the demand of complementary good. So this is all about the how the price of related goods affect the demand for a commodity. Now let us study that how tastes and preferences impact the demand for a commodity. किस तरह से एक कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस अफेक्ट करते हैं उसकी डिमांड पे. सो वी हैव टेकन द प्राइस ऑन द वाई एक्सिस एंड द क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस फॉर अ सर्टन गुड. अब देखिए जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो किन चीज़ों से इम्पेक्ट होते हैं. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ बायर आर डिटरमिन्ड बाय 3 फैक्टर्स. दो 3 फैक्टर्स आर एक इंडिविजुअल्स के लाइक्स और डिसलाइक्स, एक इंडिविजुअल के लाइक्स एंड डिसलाइक्स. फिर these are determined by the fashion and trend. Then these are determined by climatic changes determine करते हैं हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को. अगर किसी इंडिविजुअल के टेस्ट और प्रेफरेंसेस फेवरेबल हैं किसी चीज़ के लिए, अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस फेवरेबल हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस किसी चीज़ के लिए अनफेवरेबल हैं तो उस गुड की डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है. सो अगर दिस इज़ द वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन प्राइस, दिस इज़ द एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन क्वांटिटी. दिस इज सो एट प्राइस OP1 OQ1 is demanded, at D is the demand curve. At price OP1 you can see that OQ quantity is demanded. At price OP1 we are at point A and OQ quantity is demanded. Now a favorable change in tastes and preferences causes a forward shift in the demand curve and demand curve shifts from D to D1. अगर फेवरेबल चेंज आएगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम D to D1. ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी. एंड यू कैन सी दैट नाउ वी हैव मूव्ड फ्रॉम A टू पॉइंट B एंड नाउ एट प्राइस OP1 सेम कॉन्स्टेंट है प्राइस, OQ2 क्वांटिटी इज डिमांडेड. Q से Q2 दिस इज द चेंज इन द क्वांटिटी, इंक्रीज आ गया है क्वांटिटी डिमांडेड में. और अगर अनफेवरेबल चेंज होगा, एंड अनफेवरेबल शिफ्ट इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कॉजेज अ बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है डिमांड कर्व में फ्रॉम DD टू D2, फ्रॉम D टू D2. बैकवर्ड शिफ्ट होने पे क्या हुआ, अर्लियर वी वर एट पॉइंट A, नाउ वी आर एट पॉइंट C. At same price earlier we were demanding OQ quantity, now at same price we are demanding only OQ1 quantity. ये डिक्रीज आ गया है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में. सो दिस इज हाउ टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस इम्पैक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. Here I have explained both the favorable and unfavorable cases in the same diagram. I hope this point is clear to all of you. You can either make this diagram or you can make separate diagrams for both the things. Thank you.